Hello guys, welcome back to this channel. And in the last video I talked about how to apply for the visa, how to fill out the form and how to book your slot, how to change your slot. ये सब मैंने पिछले वीडियो में कर दिया. अगर आपने वो नहीं देखा है, you can go back and watch it. So this is the second part of the video where I'll be telling you what to do on interview, what documents to carry on interview. Okay, so फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इंटरव्यू के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए. फर्स्ट, योर DS-160 कन्फर्मेशन फॉर्म. ओके, आप जब भी अपॉइंटमेंट बुक करोगे आपके पास एक कन्फर्मेशन आएगा मेल पे. वो मेल आपको प्रिंट आउट, कलर प्रिंट आउट निकालो, ब्लैक प्रिंट आउट निकालो, नो प्रॉब्लम, कोई भी निकालो. उसमें बार कोड होगा, वो बार कोड क्लियरली विजिबल आना चाहिए. ओके, सो दैट पेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बिना आपको कॉन्सुलेट में या एम्बेसी में एंट्री नहीं देंगे. ऑलराइट. सेकेंड, योर पासपोर्ट इज मस्ट. सॉरी, थर्ड, आपके पास आपके कोई क्रेडेंशियल्स होंगे. फॉर एग्जांपल मेरे पास USMLE स्टेप 1 का रिपोर्ट था. आई ऑलरेडी पास USMLE स्टेप 1, सो आई हैव दैट रिपोर्ट, सो आई टुक द प्रिंट आउट ऑफ दैट रिपोर्ट. ओके, नेक्स्ट, my main reason to go to US was to do the clinical rotation. So in order to do that, I had the invitation letter from the clinic or hospital or university where I am going to do that. So वो letter of invite भी बहुत जरूरी है. Okay, apart from this, your bank statement, not your bank statement, the person who is going to pay for your expenses in United States. For example, your father, your mother. So उनका last 1 year और 6 months का bank statement जरूरी है. Then you should be having income tax return. Okay, if you are going in Indian like इंडिया में अगर आप कोई कॉन्सुलेट में जा रहे हो तो इनकम टैक्स रिटर्न बिकम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. मतलब मोस्टली पूछते हैं. एंड अगर इन चाइना and other countries, I don't think income tax return वाला कुछ काम भी आएगा, but bank statement they might ask. Okay, and another requisite is कि आपके बैंक में थोड़ा अमाउंट, थोड़ा फंड्स होने चाहिए, like 5 to 6 lakhs minimum होना चाहिए, so that they will be sure कि yes, this person is capable of going there and that's it. तो ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपके पास होनी चाहिए while you go. नाउ कमिंग टू द इंटरव्यू पार्ट. इंटरव्यू में वो मोस्टली क्या पूछेंगे, दीज आर द सम कॉमन क्वेश्चन दैट दे आस्क. एंड मुझे जो पूछा वो मैं आपसे शेयर करूंगा. जरूरी नहीं है आप सबसे भी वही पूछे. ओके, सो द फर्स्ट वन इज कि डायरेक्टली जैसे आप जाओगे इंटरव्यूअर के पास, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट दे विल आस्क यू इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ गोइंग टू यूनाइटेड स्टेट्स. ओके, तो आपको पर्पस बताना है. सेकेंड, दे विल आस्क यू वेयर डू यू स्टे, व्हाट डू यू डू, आर यू अ स्टूडेंट, आर यू इनकम अर्निंग, एनीथिंग समथिंग लाइक दैट. ओके, then they will ask you who is going to pay for your expense in US. So you can say either yourself if you have a job here, or you can say your father, mother, whoever is going to do it. Okay, and coming to the next part, that is the most important, they will ask you what is the job of your father, what does your father does. Okay, so इसमें काफ़ी सारे लोगों को अपने फादर या मदर की जो जॉब करते हैं उसमें एग्जैक्ट पोजीशन पता नहीं होती. ओके, सो यू शुड कंफर्म दिस विथ योर पेरेंट्स एंड आपको एग्जैक्ट पोजीशन पता करनी है. Okay, because they उनको वेरीफाई करने के लिए they might call up the company and they might ask is this person working there or not. Everything they will ask you about this. Okay, then they will ask you are you graduated or not if you are a student. Okay, and next they will ask you whether you need the passport now or it's okay after 4 to 5 days. अगर मिल जाए तो you can say anything. अगर आपको इमरजेंसी है तो आप तभी की तभी भी बोल सकते हो. Okay, and after your interview ends, they themselves will notify you we are approving your visa application. सीधा वो लोग बोलेंगे. Okay, they are not going to say we will let you know. ऐसा नहीं बोलेंगे. They will tell you that we are going to approve, we are going to reject. Okay, they will definitely tell you. Okay, and this interview won't take more than 2 minutes. अगर 2 मिनट से ज़्यादा आपका इंटरव्यू हो रहा है, it means they are going to reject it. Okay, 2 मिनट से ज़्यादा इंटरव्यू नहीं होगा. This 5-6 question they will be asking. And yeah, one important point, You don't have to explain your answer in detail to the officer. डिटेल में कुछ भी नहीं बताना है. Everything should be short and precise. आप पहले से प्रिपेयर करके जाना. You should use the keywords that are necessary. Okay? For example, I am going to do rotation. तो उन्होंने मुझे पूछा what is the purpose of visit. So I said I am pursuing USMLE. I am a medical student in Guangzhou Medical University. So in order to pursue my dream of becoming a resident in US, I have to do this 3 months of clinical exposure in US. That's it. That's it. 2 लाइन से ज़्यादा कोई भी आंसर नहीं देना है. अगर येस और नो में पूछ रहे हैं तो येस और नो ही देना, कोई दूसरा आंसर नहीं देना है. फर्दर दे आस्क फॉर योर डॉक्यूमेंट्स. अगर वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछेंगे तभी आप डॉक्यूमेंट निकाल के दोगे. अननेसेसरी आप सामने से उसको ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं दोगे. अगर सामने से डॉक्यूमेंट दे दिया तो ही विल थिंक समथिंग इज फिशी, व्हाई इज शोइंग मी द डॉक्यूमेंट विदाउट एनी रीजन. ओके,
अगर आपके पास स्टेप 1 का स्कोर रिपोर्ट है या कोई भी एग्जाम का स्कोर रिपोर्ट है कोई भी फील्ड में, सो आप उसको दिखा सकते हो। ओके, यस आई हैव पास दिस यूएसएमएल स्टेप 1, दिस इज माय रिपोर्ट एंड दे विल आस्क यू फॉर द लेटर ऑफ इनवाइट। लेटर ऑफ इनवाइट का डॉक्यूमेंट निकाल के आपको देना। ओके, सो सिंपल होता है इंटरव्यू। And one more thing, those who are medical students or any other students who are Indians and applying from China or Georgia, one tip for you: if you are in an intern year or final year and you are going to go back to India in less than 7 to 8 months, वहाँ से अप्लाई मत करना, बिकॉज यू माइट नॉट बी श्योर कि आपको डेट वहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि एक बार पेमेंट कर दिया उसके बाद आपकी डिटेल्स वही कंट्री की रह जाएगी। तो अगर पेमेंट करने के बाद जब भी आप यहाँ से चले गए उसके बाद की डेट आई, तो इट्स अ लॉस फॉर यू। ओके, बिकॉज आई डोंट नो द प्रोसेस कि आप कंट्री भी चेंज कर सकते हो या नो, कर ही हो पाएंगे, बट आई डोंट नो। सो बेटर डोंट डू दिस मिस्टेक। अगर आप 7 to 8 मंथ में वापस अपनी होम कंट्री जा रहे हैं तो दूसरी कंट्री से मत कराओ। इफ़ यू आर इन योर 3rd year, 4th year, 5th year एंड यू हैव 1 more year टू से, मिनिमम 1 साल रखो। फॉर मी इट वॉज 10 to 11 months। तो मुझे डेट मिल गया था, मैंने सोच लिया था, मैंने अप्रैल में अप्लाई किया था, तब तो मेरे पास मोर देन ईयर था। आई हैड 15-16 months। ओके, सो थिंक अबाउट दिस प्रॉपरली एंड आई डोंट थिंक एनीथिंग इज लेफ्ट टू कवर। दैट्स इट फॉर द इंटरव्यू पार्ट। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको सारे बता दिए, मैंने आपको फॉर्म फिलिंग का सारा बता दिया। आई हैव मेंशन द साइट्स, वीडियो में ही मैंने साइट्स मेंशन भी कर दी है। सो बेसिकली आपको जो वीज़ा मिलेगा वो 10 years का मिलेगा एंड या दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ मेंशन डाउन द कमेंट एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड दैट्स इट। सो आई टेक योर लीव, टेक केयर, गुड बाय एंड ऑल।